Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 30. This lecture number 30 is related with our chapter number 7, and this chapter number 7 includes cash transactions. But before directly going to this chapter, I would give you an overview what we have discussed in our previous class. We discussed about the inventory management techniques, how you have to manage your inventories. Either you are managing it through a perpetual inventory system or periodic inventory system. And then within these inventory management techniques, we have discussed about the cost flow assumptions. We discussed about first in, first out, last in, first out, and then we have discussed average method of perpetual inventory system and periodic inventory system. So these were the three basic cost flow assumptions which are being used either in the perpetual inventory system or periodic inventory system. Now in chapter number 7 we are going to discuss about the nature of cash and its importance over the internal control. Then we will also discuss about the basic procedures for achieving internal control over cash receipts, internal control over cash payments, including the use of a voucher system. We will also discuss about the nature of bank account and its use in controlling cash. And finally, we will prepare a bank reconciliation statement. We will also discuss about what is a bank reconciliation statement and how it is important for controlling your cash transactions. So internal control over cash includes many companies need several cash accounts to account for different cash categories and funds. Because if you have seen that one company, even I should say even a small shopkeeper, उसके भी डिफरेंट बैंक अकाउंट्स होते हैं. उसने अपना अकाउंट रखा होता है यूबीएल में, एबीएल में, बैंक अल-फलाह में, नेशनल बैंक में, और पता नहीं कितने बैंक्स होते हैं कि उसका एक से ज़्यादा बैंक्स के अंदर बैंक अकाउंट होता है. Then most of the companies have multiple bank accounts. The title for cash should be cash in bank. अब फिर आपने बताना ये होता है कि आपकी कैश इन बैंक कितनी है. आपके पास कैश इन बैंक, आप फिर नाम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट एलाइड बैंक में, तो आप वहां पर एलाइड बैंक लिखते हैं रादर देन ए सिंपल बैंक, क्योंकि आपके तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं. तो आप मेंशन करते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, आप एबीएल कह सकते हैं. एबीएल मीन्स के दिस इज अ बैंक इन विच यू हैव डिपॉजिटेड योर मनी. यूबीएल हो सकता है कि आपने यूबीएल में डिपॉजिट करवाया हुआ है. आपका करंट अकाउंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट है या आपका सेविंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है. You have to give the name of that bank account. अब जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंट रिसीवेबल इज अ कंट्रोल अकाउंट. आपने किस किस से रिसीव करना है उन सब की डिटेल आप मेंशन कर रहे होते हैं उनके सब्सिडी लेजर्स अकाउंट में. तो सेम हियर इन योर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स you give the name of these bank accounts so that you should understand कि आपके किस अकाउंट में कितने पैसे मौजूद हैं. Then preventive control protects cash from theft and misuse of cash. आपके पास कैश पड़ी है तो आपने ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं. हम इंटरनल कंट्रोल में पढ़ चुके हैं ना, इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि आपने प्रिवेंटिव कंट्रोल मीन्स के you have developed a system in which nobody is trying to
snatch, to misuse your cash or stealing of your cash, उसको चोरी ना कर सके, उसको मिसयूज अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सके, तो आपने शुरू में ही ऐसे मैयर्स अडॉप्ट कर लिए होते हैं, बजाय इसके के बाद में उनको चेक करते फिरें। आप सिस्टम ही ऐसा डेवलप करें कि किसी को उसका मौका ही ना मिले। देन डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट थेफ्ट और मिसयूज ऑफ कैश एंड आल्सो प्रिवेंटिव इन नेचर। आपने सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि किसी ने कोई गड़बड़ की, फौरन ही वहां पे डिटेक्ट हो गया। प्रिवेंटिव आपको यह बताता है कि आप कर ही नहीं सकते, आपने शुरू में बना ही सिस्टम ऐसा दिया कि वहां पे ना चोरी हो सकती है, ना उसको मिसयूज किया जा सकता है पर्सनल पर्पसेस के लिए। लेकिन डिटेक्टिव कंट्रोल आपको यह बताता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ हुई, फौरन ही डिटेक्ट होगी कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे कैश मिसयूज हुई है, यहाँ पे कैश चोरी हुई है। और वो कहता है कि दैट शुड आल्सो बी अ प्रिवेंटिव इन नेचर एज वेल, कि कोशिश करे पकड़ा जाए लेकिन कर भी ना पाए उसको। सो that should be the design of internal control over cash, so that nobody can make misuse of your cash, या उसको कोई चोरी भी ना कर सके। रिटेलर सोर्स ऑफ कैश क्या होता है? एक रिटेलर है, उसका सोर्स ऑफ कैश क्या होता है, कैसे वो उसको मेंटेन कर सकता है? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है, वो कैसे कंट्रोल करेगी? आपके पास फॉर एग्जांपल ये कैश पड़ी है, दैट इज योर कैश। अब एरो कीज आपको बता रहे हैं कि यू हैव अ सेपरेट मैकेनिज्म फॉर अ कैश डिपार्टमेंट एंड योर रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। अब अगर एक ही बंदा रिकॉर्ड करता है, एक ही बंदा कैश डील करता है, तो इट मींस देयर इज ए ह्यूज चांसेस ऑफ मिसयूजिंग और स्टीलिंग ऑफ कैश। आपके पास जाहिर है वो कैश रिसीव करेगा, नहीं लिखेगा, कैश पे करेगा, नहीं लिखेगा, पता नहीं कैश एक्चुअल पेमेंट की भी हो रही है या अपने पर्पसेस के लिए आ रही है। सो यू शुड डिजाइन कैश कंट्रोल सिस्टम इन विच इट्स नेचर शुड बी प्रिवेंटिव एज वेल एज डिटेक्टिव। तो आपने सिस्टम ही अलग कर दिया कि आपका जो कैश डिपार्टमेंट है वो अलग हो गया और रिकॉर्ड कहां पे हो रही है वो अलग डिपार्टमेंट हो गया, दोनों ही अलग हो गए। अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिकॉर्ड कर रहा है और कैश डिपार्टमेंट कैश रिसीव या पे कर रहा है। फिर आपस में इनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि आप फिजिकली चेक भी कर सके कि कैश इतनी ही हमारे पास फिजिकली मौजूद है जितनी हमारे रिकॉर्ड में, वो यहाँ पे आप चेक कर रहे होते हैं, उसको आप चेक कर रहे हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक ही कैश है या नहीं है। अदरवाइज कैश आपकी आ रही है और कैश आपकी जा रही है थ्रू कैश डिपार्टमेंट या कैशियर्स डिपार्टमेंट, और कितनी आ रही है कितनी जा रही है, दैट इज बीइंग मेंटेन्ड इन योर रिकॉर्ड रजिस्टर्स एंड इट इज मेंटेन्ड बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फिर एट द एंड आप चेक कर रहे होते हैं कि आपका कैश, फिजिकल कैश और आपकी रिकॉर्डिंग क्या सेम लेवल पे चल रही है कि नहीं चल रही। तो यहां पे जब आपके पास पर्सन ही अलग अलग है, डिपार्टमेंट ही अलग अलग है, सो देन देयर इज ए चांस दैट यू कैन इजीली प्रिवेंट योर मिसयूज ऑफ कैश and there is a chance that can easily detect any misuse of cash. Now अब दरमियान में क्या होगा कि आपका कैशियर है, कैशियर का डिपार्टमेंट है और दूसरा आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। दरमियान में एक और इंटरमीडिएट आ गया, दैट इज अ बैंक। अब होगा ये कि कैशियर अपने पास कैश कभी भी नहीं रखता, वो सिर्फ रिसीव या पे करता है, लेकिन उसके पास फिजिकल कैश की स्टोरेज नहीं होती, लॉकर्स उसके पास नहीं पड़े होते। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट बीइंग केप्ट बाय द कैशियर। वो उसको सब की सब अमाउंट को बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाता है, लेकिन कैश को डील करना किसकी जिम्मेदारी है? कैश डिपार्टमेंट की। फिजिकल कैश को डील करना, रिसीव करना या पे करना, दैट इज ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैशियर।
It is not the responsibility of an accounting department. Accounting department just record any payment or receipts. अब इस तरह पिक्चर को देखें जो आपको शो हो रही है कि कैशियर रिसीव कर रहा है या फिर पे कर रहा है कैश, और ये कैश रिसीव या पेमेंट हो ही बैंक के थ्रू रही है, ये सारा बैंक डील कर रहा है उसको। लेकिन कैश विड्रॉ करवाना, कैश डिपॉजिट करवाना, दैट इज ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैशियर। दिस इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल, एक तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कैशियर और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये दोनों सेपरेट डिपार्टमेंट हैं। अब आपस में इनकी डील है, वो बता रहा है कि जी कैश कितनी आई कितनी गई। एक अब आप अगर बैंक के थ्रू एग्जांपल देखें तो जब भी कहीं पे डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी डिफरेंट स्लिप्स होती हैं। इवन कि आप अपनी अगर ये फीस जमा करवाते हैं बैंक के अंदर तो उसकी डिफरेंट कॉपीज होती हैं। एक लिखा होता है स्टूडेंट कॉपी, फिर एक बैंक कॉपी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी, और मतलब एक और कॉपी होती है। टोटल आपकी 3 या 4 उसमें एक लीफ बने होते हैं। तो वो क्या शो कर रहे होते हैं कि आपकी हर एक जगह उसका रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये जो 3-4 लीफ हैं, उसके 3-4 पेजेस हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि देयर इज अ कंट्रोल ऑफ कैश, कि अगर एक बंदे ने कैश रिसीव की है तो फिर दरमियान में से वो सिस्टम ही खत्म हो गया कि कोई इसको चोरी कर सके या उसको मिसयूज कर सके अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए। सो अब कैशियर जो है वो डिपॉजिट करवा रहा है बैंक के अंदर, स्लिप फिल किया उसने और जाके डिपॉजिट करवा दिया। अब बैंक ने वो जो उसकी फॉर एग्जांपल 3 लीव्स थी वो उस पर स्टैंप लगाई, एक लीफ दे दी कैशियर को कि यस यू हैव डिपॉजिटेड योर मनी, दूसरा लीफ अपने पास रख लिया एज ए रिकॉर्ड दैट दिस पर्सन हैज, दिस कंपनी हैज, दिस बिजनेस हैज डिपॉजिटेड दिस मनी। जाहिर है उन्होंने पैसे रिसीव किए तो एक रिकॉर्ड अपने पास भी रखना है। जो तीसरा होगा लीफ उस डिपॉजिट स्लिप का, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बैंक भेज देगा। अब यहां पर वो टैली कर रहे हैं उसको कि क्या हमने जो अमाउंट जमा करवाई थी क्या ये उसके मुताबिक है या नहीं है। तो दैट इज ऑलवेज बीइंग डन इन अ प्रॉपर प्रोसीजर सो दैट देयर शुडंट बी एनी मिसयूज और थेफ्ट ऑफ कैश। कोई भी उसको ना चोरी कर सके ना पर्सनल पर्पसेस के लिए यूज कर सके। ये सिर्फ आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं, एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसी तरह उसकी डीलिंग होती है। उसके प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, स्टैंप लगाई जाती है, उसके डिफरेंट लीव्स होते हैं, और जितने भी उसकी पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व, उन सब को एक एक कॉपी दी जाती है। अब देखें दैट स्टार्टेड फ्रॉम कैशियर डिपार्टमेंट। कैशियर ने डिपॉजिट करवाया, अब 3 लीव्स थी, तीनों को फिल किया उसने। अब तो इस तरह की लीव्स आ चुकी हैं कि आप एक के ऊपर लिखते हैं तो दूसरा उसकी कार्बन कॉपी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है, सब पे लिखा जाता है वो। तो बैंक में जब आप वो कैश लेके जाते हैं साथ उस डिपॉजिट स्लिप के साथ, तो बैंक तीनों पर अपनी स्टैंप लगा कर दे देता है। अब 2 अपने पास रख लेता है और एक कैशियर को वापस कर देता है। अब कैशियर के रिकॉर्ड में एक आ गई कि दिस अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय मी। फिर बैंक अपने पास एक कॉपी रखता है और बाद में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक कॉपी भेज देता है। या फिर ये भी होता है कि 4 अगर होंगी तो बैंक फिर अपने जो उसका सेंट्रल ऑफिस होता है या रीजनल ऑफिस होता है उसमें भी उसको भेज देता है। तो अब 4 जगह रिकॉर्ड आ गया कैश का और 4 जगह उन्होंने कैश को कंट्रोल किया हुआ है। ये इस पर फोकस इसलिए किया जा रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू शुड नॉट यूज योर कैश फॉर योर पर्सनल पर्पसेस। Okay, should I remove all this? Now, controlling cash received in the mail. Most companies' invoices are designed so that customers return a portion of invoice called a remittance advice. अब क्या हुआ कि ये तो आपने इससे पहले फिजिकल कैश बैंक कस्टमर को दे दी थी, आपने अपने कंपनी को दे दी थी। आपका कस्टमर आपको डायरेक्ट कैश दे गया, आपसे कोई चीज़ परचेज किया और डायरेक्ट वहीं पे कैश पेमेंट कर दिए।
अब मुख्तलिफ कस्टमर्स कैश जमा करवाते रहते हैं, एक बहुत बड़ी अमाउंट जमा हो जाती है जिसको फिर कैशियर बैंक में जाके जमा करवाता है। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि अब आप देखें कि हर बैंक में एक ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है। वो ऑनलाइन सिस्टम आपको क्या बताता है कि आप कैश कहीं पे भी बैठे हो उस स्पेसिफिक पर्सन के अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन कराची एंड योर कंपनी इज वर्किंग इन इस्लामाबाद। तो जो कराची का कस्टमर है वो आपको वहीं से, बजाय इसके कि खुद आए इस्लामाबाद में आपको कैश दे, तो देर इज अ चांस दैट कैन एनीबॉडी स्टील। अब जाहिर है जिस तरह चोरी वगैरह हो जाती है, कोई स्नैचिंग हो जाती है, कोई छीन लिया जाता है कैश को, तो वो बजाय इसके कि इतना ट्रैवल करके आए, 7-8 हज़ार रुपया उस ट्रैवलिंग कॉस्ट को बेयर करे, तो सिंपल वो वहीं पे बैंक में बैठा हुआ, कराची के बैंक में बैठा हुआ और ऑनलाइन कैश पेमेंट कर देता है। अब यहां पे उसको खुद आने की जरूरत नहीं है, कैशियर को पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली उसने क्या किया, उसने कराची के बैंक में बैठ के अकाउंट के थ्रू पैसे को ट्रांसफर कर दिया आपके अकाउंट में। जो बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो होता ये है कि अब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कराची से पैसे भेज दिए हैं, कैसे भेजे? थ्रू बैंक अकाउंट, ऑनलाइन उन्होंने रेमिटेंस कर दी है। तो फिर बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद वो सिंपल OCS, TCS है, लेपर्ड कोरियर है या कोई और DHL वगैरह है, उसके थ्रू वो जो एक उसके पास रसीद थी वो फिर बिजनेसमैन को भेज देगा कि यस दिस अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट। उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेगा, ओरिजिनल जो है वो बिजनेसमैन को, एक कंपनी को भेज देगा जिससे उसने चीजें परचेज की होती। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। अब क्या हुआ कि आपको डायरेक्ट कराची से इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद में बिजनेस है, आपने कराची से कोई चीज परचेज की, इन्होंने वहां से भेज दी थी आपको कराची में, तो फिर आप कराची का कस्टमर सिंपल अपने बैंक में जाएगा और वहां से उसको ऑनलाइन रेमिटेंस कर देगा। उसके थ्रू जो उसके पास एक डिपॉजिट स्लिप आएगी, वो डिपॉजिट स्लिप कॉपी अपने पास रखेगा और जो ओरिजिनल है वो उसको भेज दी जाएगी। उसने ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दी। उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि कहीं पे कोई चांस हो नॉन पेमेंट का। अब जब बिजनेसमैन के पास वो कॉपी आएगी थ्रू मेल, तो फिर उसको बैंक में जाके वेरीफाई करेगा कि वाकई डिपॉजिट हो चुका है कि नहीं हो चुका, क्या ये अमाउंट हमारे पास पहुंच चुकी है कि नहीं हो चुकी। तो वो देखेगा कि हम ये रिसीव कर चुके हैं, तो फिर उसको सिंपल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले ओके कर देंगे, यस दिस अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड, सो ऑल द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन। तो फिर एक तो डायरेक्ट कस्टमर को चीजें सेल की जा रही हैं, वो आपको डिपॉजिट करवा रहा है और कैशियर जाके बैंक में जमा करवा देता है, या फिर कस्टमर खुद बाय हिमसेल्फ और हर सेल्फ डिपॉजिटिंग मनी इनटू योर बैंक अकाउंट। अब नॉर्मली होता ऐसे ही है कि आप फीस जमा करवाते हैं तो डायरेक्ट बैंक में जमा करवाते हैं। अब दरमियान में आप कस्टमर ही हैं उस यूनिवर्सिटी के, उस इंस्टीट्यूशन के, तो आप उस इंस्टीट्यूशन की भी आप पे खुद डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। सेम इज द केस विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। अब HEC में आपने कोई पेमेंट करनी है तो आप बैंक में जमा करवाते हैं। HEC को बहुत कम डायरेक्ट पेमेंट की जाती है, जस्ट टू कंट्रोल अ कैश, के मिस यूज ना हो उसमें से कैश, क्योंकि बैंकर्स जो हैं वो दे आर वेरी प्रोफेशनल टू डील विद द कैश। कैश ही डील करते हैं ना वो लोग, तो उनको पता है कि उन्होंने कैश को कैसे कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए होते हैं कि आपको फैसिलिटेट करते हैं कि आपकी कैश को मिस यूज होने से बचाया जा सके, उसको मिस हैंडल होने से बचाया जा सके। सो देयर आर टू वेज। एक मैंने आपको बताया कि रिटेलर्स कैश, उसमें आपने डायरेक्ट कैश बिजनेस को जमा करवाई, कंपनी को जमा करवाई आपने, और कंपनी का जो कैशियर है वो फिर बैंक में जमा करवा रहा होता है। या फिर इफ यू हैव परचेज्ड बाय योर ओन सेल्फ एंड यू आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू द बैंक अकाउंट रादर देन गिविंग कैश टू द कैशियर, आप बैंक में जाके जमा करवा देते हैं और उसकी एक कॉपी जो है वो अपने जो कंपनी है जिससे आपने चीजें परचेज की होती हैं उसको
आप उसकी जो रसीद है उसकी कॉपी जमा करवा देते हैं, ये भेज देते हैं ऑनलाइन। आप उसके अकाउंट में जमा करवाने के बाद उसकी जो रसीद होती है वो आप थ्रू मेल उसको भेज रहे होते हैं। अब तो और ज़्यादा आसानी ये आ गई है कि आप ये एक फिज़िकल मेल से भी बाहर निकल गए हैं। अब आपका सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया हुआ है, इवन कि आप स्कैन करते हैं और स्कैन की कॉपी को आप कंपनी में भेज देते हैं कि यस दिस अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड नाउ। तो ये थोड़ा सा इसमें रिस्की चांस ये होता है कि उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन जब आप उसको फिजिकली भेज रहे हैं मेल के थ्रू तो उसमें चांसेस ज़रा कम होते हैं क्योंकि बैंक के ऊपर प्रॉपर स्टैम्प विजिबल होती है। नाउ कंट्रोलिंग कैश रिसीव्ड इन द मेल, आपने क्या करना होता है? द एम्प्लॉय हु ओपन्स द मेल शुड इनिशियली कंपेयर द अमाउंट रिसीव्ड विद द अमाउंट ऑन द रेमिटेंस एडवाइस। आपने उसको कंपेयर करना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट कि जो आपने मेल के थ्रू जो अमाउंट मिली है आपने रिसीव की है, क्या वो एडवाइस के मुताबिक थी? ये तो नहीं थी कि आपने चीज़ें सेल की थी फॉर एग्जांपल 1000 की और 950 का उसमें डिपॉजिट आया हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं था। एट बोथ शुड बी 1000, वो इस चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है। जो एडवाइस थी, रेमिटेंस एडवाइस थी, क्या उसके मुताबिक ही रिसीव हुई है? समटाइम ये भी होता है कि जो एक दरमियान में चीज़ें की जाती हैं वो ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बैंक चार्जेस अपने 100 ले लेता है। कोई भी आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो बैंक उसके चार्जेस ले लेता है, तो आप उसको कहते हैं कि जी पैसे इसमें से काटने हैं आपने, तो वो फिर गलत हो जाता है क्योंकि आप जो कंपनी है उसने तो रिसीव 1000 करने हैं, जो ऊपर ऑनलाइन रेमिटेंस कर रहे हैं आप, वो कस्टमर ने खुद पे करना होता है। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि जी आपको वो 1000 की चीज सेल करें प्लस वो रेमिटेंसेस की भी पेमेंट करें। तो आपने उसका कंपैरिजन करना होता है इनिशियली एट फर्स्ट स्टेज। देन एम्प्लॉय ओपनिंग द मेल स्टैम्प्स चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स फॉर डिपॉजिट ओनली इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। अब वो क्या कर रहा है कि जो मेल ओपन कर रहा है उसके ऊपर स्टैम्प्स चेक कर रहा है एंड मनी ऑर्डर्स देख रहा है फॉर डिपॉजिट ओनली। इसका क्या मतलब है? इफ यू कुड रिमेंबर इन माय प्रीवियस लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू दैट आपके पास एक तो ऑनलाइन का सिस्टम है, फिर आप अगर चेक भेज रहे हैं तो क्या वो बेरर चेक है? बेरर चेक कभी भी मेल में नहीं भेजा जाता। क्या वो ऑर्डर चेक है अगर आप बेरर को क्रॉस कर देते हैं? या फिर आप जो आपका चेक होता है उसके एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे अगर आप 2 लाइंस लगा देते हैं तो वो आपका क्रॉस चेक बन जाता है। इट मीन्स दैट दिस अमाउंट कैन नॉट बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक एट देयर काउंटर, वो आपके अकाउंट में ही जमा होगा। एक तो ये पेमेंट का जरिया होता है। दूसरा यहाँ पे फॉर डिपॉजिट ओनली, आप मनी ऑर्डर्स देते हैं, आप पे ऑर्डर्स देते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे होते हैं। ये सारे के सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पेमेंट के लिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवा रहे पेमेंट, अकाउंट में जमा नहीं करवा रहे ऑनलाइन, तो फिर आप बैंक के पास जाते हैं और उनसे या तो मनी ऑर्डर बनवा लेते हैं, मनी ऑर्डर बनवाया, या फिर पे ऑर्डर बनवाया, इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेते हैं। ये नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि जो आप बैंक से बनवाते हैं और थ्रू TCS, OCS, DHL, लेपर्ड, इनके थ्रू आप भेज रहे होते हैं उनको। तो फिर अब उसके ऊपर स्पेसिफिक नाम मेंशन होता है कि ये किसके नाम पे है, इसके अलावा कोई और उसको अपने अकाउंट में जमा नहीं करवा सकता। वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बैंक चार्जेस लेता है। अब ऑनलाइन अगर कोई नहीं करवा रहा तो सिंपल वो आपसे ये कहता है कि जी आप इसका मनी ऑर्डर बनवा दें, या पे ऑर्डर बनवा दें, या डिमांड ड्राफ्ट बनवा दें। तो जब वो कंपनी रिसीव करती है तो अपने अकाउंट में जाके डिपॉजिट करवा देती है उसको। सो दैट कुड बी द वे ऑफ डिपॉजिटिंग मनी। देन ऑल कैश इज सेंट टू द कैशियर्स डिपार्टमेंट वेयर चेक्स एंड मनी ऑर्डर्स आर कंबाइंड। सब चेक को इकट्ठा करते हैं, मनी ऑर्डर्स को आप इकट्ठा करते हैं विद रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स एंड अ बैंक डिपॉजिट टिकट इज प्रिपेयर्ड। फिर क्या करते हैं, जब आपको कैशियर इकट्ठा कर लेता है इन ड्राफ्ट्स को,
इन चेक्स को या इन कैश को, तीन इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास हैं, एक कैश, एक आपके पास ये डिमांड ड्राफ्ट हो गया, पे ऑर्डर हो गया, या आपके पास मनी ऑर्डर हो गया, इनको इकट्ठा किया, तीसरा आपके पास ये जो चेक्स होते हैं, इन तीनों को इकट्ठा करता है। इन तीनों को इकट्ठा करने के बाद फिर वो डिपॉजिट स्लिप फिल करता है हर एक की। डिपॉजिट स्लिप फिल करने के बाद फिर उसको बैंक के अंदर लेके जाता है कि नाउ वही प्रोसेस जो हमने देखा था कि वो कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट, इन सब को इकट्ठा किया उसने, उनकी जो डिपॉजिट स्लिप थी उसको फिल किया और बैंक में जाके जमा करवा दिया। उसके 3-4 लीव्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे किया जाता है। ये सारी स्लिप करने के बाद फिर वो बैंक के अंदर उनको ले जाता है डिपॉजिट करवाने के लिए। देन फिर रेमिटेंस एडवाइसेस एंड देयर समरी टोटल्स आर डिलीवर्ड टू द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जब अकाउंटेंट ने इन सब चीज़ों को जमा कर दिया, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो फिर उसकी एक स्लिप जो एक कॉपी होती है, डिपॉजिट स्लिप की एक कॉपी होती है, वो फिर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है। वेयर अ क्लर्क प्रिपेयर्स द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम टू देयर कस्टमर अकाउंट्स। तो फिर जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उसको फिर कहता है कि जी ओके, फॉर एग्जांपल ये एक कस्टमर है, इसने डिपॉजिट करवा दी है, ये दूसरा कस्टमर है, इसने भी इतनी अमाउंट हमें पे कर दी है, तीसरा कस्टमर है, इसने भी डिपॉजिट करवा दी है, इतनी अमाउंट पे कर दी है, चेक दे दिए, डिमांड ड्राफ्ट भेजा हुआ था, चौथा कस्टमर है, उसने ये कर दी। इन सब की डिटेल फिर अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि उनको क्लियर करता है उनके सब्सिडी लेजर अकाउंट्स में। सो आई होप नाउ कि दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस कि काम कैसे स्टार्ट किया आपने। कैशियर कैश को भी इकट्ठा करता है, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स को भी इकट्ठा करता है, चेक्स को भी इकट्ठा करता है, उनकी जो ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप है या दूसरी जो डिपॉजिट स्लिप है उसको फिल करता है। इन सारी चीज़ों के साथ वो बैंक में जाता है, बैंक में सारी की सारी डिपॉजिट करवाता है। फिर जो डिपॉजिट की स्लिप होती है वो एक अपने पास रखता है और एक जाके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जमा करवा देता है। फिर उन सब को क्लियर करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के, ओके दिस कस्टमर हैज़ टू पे दिस अमाउंट, नाउ दिस कस्टमर इज पेइंग, सो वी आर डिडक्टिंग दिस अमाउंट फ्रॉम दिस रिसीवेबल्स। ये सारे का सारा काम वो कर रहा होता है। देन द स्टैम्प्ड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डिपॉजिट टिकट इज रिटर्न टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वेयर अ क्लर्क कंपेयर्स द रिसीट्स विद द टोटल अमाउंट दैट शुड हैव बीन डिपॉजिटेड। फिर अब वो क्या करता है कि उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी निकालता है और फिर उसको बताता है कि अब इस अमाउंट को डिपॉजिट करवाया गया है। यानी द स्टैम्प्ड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डिपॉजिट टिकट मीन्स के वो जो स्लिप होती है ना, जो डिपॉजिट स्लिप होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट टिकट इज रिटर्न टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, उसको अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया जाता है। वेयर अ क्लर्क कंपेयर्स द रिसीट, अब जो क्लर्क होता है वो उसको कंपैरिजन करता है कि क्या अमाउंट जो डिपॉजिट करवाई गई है क्या वो ठीक है या नहीं है, उसकी क्या वैल्यू है, कितनी अमाउंट है वो, और क्या एक्चुअली वही अमाउंट डिपॉजिट करवाई गई है जो उनके अकाउंट्स में मौजूद थी। ये पूरे का पूरा एक प्रोसेस है। स्टार्ट कहाँ से किया, नाउ वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन दैट दिस अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड एंड दिस पर्सन हैज टू डिपॉजिट दिस अमाउंट। So I hope now you can understand controlling cash received in the mails. कैश मिल गई आपको, चेक्स मिल गए, क्रॉस चेक्स मिल गए या आपको ड्राफ्ट मिल गए। नाउ कंट्रोल ऑफ कैश पेमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश पेमेंट्स। वो तो रिसीट के बारे में था कि यू आर रिसीविंग कैश, यू आर रिसीविंग क्रॉस चेक्स, यू आर रिसीविंग डिमांड ड्राफ्ट्स या पे ऑर्डर्स अगेंस्ट द सेल्स दैट यू हैव मेड ऑन अकाउंट, या क्रेडिट पे आपने जो सेल्स किए उसके थ्रू आपको डिमांड ड्राफ्ट मिल रहा है, कैश मिल रहा है, या आपने वैसे सेल किए उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल रही है। नाउ एट दिस स्टेज बीइंग अ कस्टमर, आप अपनी कंपनी के लिए भी चीजें परचेज करते हैं, फॉर दैट यू हैव टू पे द मनी। अब आपने भी उसकी पेमेंट करनी होती है, तो फिर क्या करते हैं आप, जाहिर है उसके लिए भी कंट्रोल होना चाहिए, कहीं आप एक्स्ट्रा तो नहीं पे कर रहे। आपने पे करना है 1000 और आप पे कर रहे हैं 1200, सो यू आर पेइंग 200 मोर, इट मीन्स दैट देयर कुड बी ए चांस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश फॉर 200 रुपीज। तो आपने उसके ऊपर भी कंट्रोल रखना है कि जो एग्जैक्ट अमाउंट आपने पे करनी है आप वही पे करें, रादर देन पेइंग ए ह्यूज अमाउंट। एक बात तो क्लियर है कि दैट देयर शुड बी अ सेपरेट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड अ कैश डिपार्टमेंट।
आपका एक ही पर्सन ना अकाउंटेंट हो सकता है ना दूसरा हो सकता है उसमें। सो कैश कंट्रोल मस्ट प्रोवाइड एश्योरेंस दैट पेमेंट्स आर मेड फॉर ओनली ऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, यानी वर्क डन बाय वन पर्सन इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन ऑटोमेटिकली। अब यहां पर ये एक रूल ऑफ थंब है और यही आपको बताता है कि दिस इज अ कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ इंटरनल कंट्रोल दैट वन पर्सन कैन नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजैक्शन ऑफ पेइंग कैश एंड रिकॉर्डिंग कैश। उसकी प्रॉपर एक ऑथोराइजेशन चाहिए होती है। अब कोई ऑथोराइज कर रहा है तो उसके रिकॉर्ड में ये चीजें आ रही हैं कि ये पेमेंट की जा रही है। पेमेंट कौन कर रहा है? कैशियर कर रहा है, लेकिन उसके रिकॉर्ड में ये बातें मौजूद हैं जो ऑथोराइज पर्सन है। ऑथोराइज पर्सन इज नॉट अ कैशियर, वो आपका कोई मैनेजर हो सकता है, कोई रीजनल मैनेजर हो सकता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई प्रेसिडेंट हो सकता है कंपनी का। तो जब वो ऑथोराइज कर रहा है तो उसके नॉलेज में आ चुकी है बात, उसके रिकॉर्ड में आ चुकी है कि ये अमाउंट इतनी पे की गई है। सो कैश कंट्रोल्स मस्ट प्रोवाइड एन एश्योरेंस दैट द पेमेंट्स आर मेड फॉर ओनली ऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस। अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शंस कभी भी उनकी पेमेंट नहीं हो सकती। देन कैश कंट्रोल शुड अश्योर दैट कैश इज यूज्ड एफिशिएंटली। कोई बार्गेन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई डिस्काउंट भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, आपने इस बात को श्योर करना है कि वाकई ही जो पेमेंट की गई है वो वाकई ही आपकी एक प्रॉपर पेमेंट होनी थी वहां पे। सो कैश कंट्रोल शुड इंश्योर दैट कैश इज यूज्ड एफिशिएंटली। प्रॉपर तरीके से उसको जिस पर्पज के लिए यूज होना था उसी पर्पज के लिए यूज की जा रही है। बिला वजह के एक्सपेंसेस तो नहीं हो रहे आपके, कोई फजूल में मतलब जाहिर है आप देख सकते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं कि शाह खर्ची होती हैं कंपनियों के अंदर, लेकिन कंपनी शाह खर्ची नहीं करती। जिनके प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो शाह खर्ची नहीं कर रहे होते। Then the third one is a voucher system provides assurance that what is being paid for was properly ordered, received and billed by the supplier. अब यहाँ पे तीन चीजें बताई गई हैं which is being underlined: ordered, received and billed by the supplier. ऐसे तो नहीं है कि आपने वैसे ही पे कर दियो। A voucher system provides, again I repeat, a voucher system provides assurance that what is being paid, आप जो पे कर रहे हैं, फॉर वॉज प्रॉपरली ऑर्डर्ड, क्या वाकई उसके लिए ऑर्डर किया गया था, उस ऑर्डर को रिसीव किया गया है और उसका प्रॉपर बिल बना है कि नहीं बना। आपने ऑर्डर किया और वो ऑर्डर आपको रिसीव हो गया। आपने फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज करना था, इन्वेंट्री आपने परचेज करनी थी, आप पिछले लेक्चर्स में देखते रहे, आपने इन्वेंट्री परचेज की है, आपको इन्वेंट्री मिल गई है, मिलने के बाद प्रॉपर उसका बिल बना है कि नहीं बना। वो बिल जो है वो आपका एक वाउचर का काम करता है। वो वाउचर आपको बता रहा होता है कि आपने ये इन्वेंट्री खरीदी, क्योंकि उस वाउचर के ऊपर पूरी डिटेल में ये चीजें लिखी होती हैं कि ये वाउचर आपका बना है और इसमें इतनी अमाउंट है, आइटम कौन सा परचेज किया गया है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया गया है और पर आइटम उसकी प्राइस क्या है। तो ये आपको एक वाउचर सिस्टम बता रहा होता है, दैट इज फॉर कैश पेमेंट्स। अब जाहिर आपने पे तो करना है ना, कि जिसके लिए आप पे कर रहे हैं उसका प्रॉपर ऑर्डर हुआ था, उसको आपने प्रॉपर रिसीव किया उस ऑर्डर को, और देन उसका बिल भी बना था कि नहीं बना था, या सिंपल आपने पेमेंट कर दी है उसकी। देन अ वाउचर सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑथराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग लाइबिलिटीज एंड कैश पेमेंट्स। आप जब कंपनी लेवल पे बात करते हैं तो कंपनी लेवल में हमेशा ऐसे होता है कि आपने हमेशा अक्रूवल बेसिस पे, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमेशा कंपनी लेवल पे अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। एंड वी नो दैट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज के वेदर यू आर परचेजिंग और यू आर सेलिंग, कोई भी हो सकती है आपकी, दोनों ट्रांजैक्शन सेल्स की भी हो सकती है, परचेजेस की भी हो सकती हैं, कि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन कर दी है, इधर यू हैव रिसीव्ड कैश और नॉट, इट डजंट मैटर,
जब आपने ट्रांजैक्शन कर दिया यू हैव टू रिकॉर्ड। कंपनी लेवल पे हमेशा आपकी अक्रूवल बेसिस चलती है और उसमें अक्रूवल बेसिस में आपकी ऑन क्रेडिट काम होता है कि भाई वी आर परचेजिंग दिस कमोडिटी, आप उसको भेज दें और हम तब उसकी पेमेंट करेंगे। डील के दौरान कभी भी पेमेंट नहीं होती। डील के दौरान सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहता है कि ठीक है जी आपकी चीज़ें पहुंच जाएंगी, वहाँ पे चीज़ें पहुंच जाती हैं, सप्लायर आपको वो इन्वेंट्रीज पहुंचा देता है, उसके बाद फिर आप उसको पेमेंट कर रहे होते हैं। तो दरमियान में बेशक 1 घंटे का टाइम हो, बेशक आपका 5 दिन का टाइम हो या 1 महीने का टाइम हो, इट डजेंट मैटर। जब दरमियान में 1 घंटे का भी गैप आ चुका है तो फिर इसका मतलब यह है कि यू आर यूजिंग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एंड यू हैव टू क्रिएट ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शंस। सो वाउचर सिस्टम क्या है? बेसिक फीचर्स ऑफ वाउचर सिस्टम इज दैट कि इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑथोराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग लाइबिलिटीज। पहले आपने उनको लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना। आपने कोई चीज परचेज की, इन्वेंट्री आ गई, यू आर नॉट पेइंग येट कैश, इट मीन्स दैट यू हैव क्रिएटेड योर लाइबिलिटी। आफ्टर दैट यू आर पेइंग कैश। पहले आपने क्या किया? आपने फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री को आपने डेबिट किया और अकाउंट्स पेएबल आपका क्रेडिट हो गया। फिर अगर इन केस आपने 1 घंटे बाद ही उसकी पेमेंट कर दी है या सामान आपको 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद मिल गया, आपने उसको वेरीफाई किया, जो आपने ऑर्डर दिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसके मुताबिक अगर मिल गया आपको, देन आप अकाउंट्स पेएबल डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पे फौरन ही, बेशक 1 घंटे का टाइम ही दरमियान में है, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर लाइबिलिटी, और वो यही बात कर रहा है कि रिकॉर्डिंग लाइबिलिटीज एंड देन कैश पेमेंट्स। सो दैट इज अ कंप्लीट वाउचर सिस्टम कि उसका वाउचर्स बनता है। जब आपने कोई चीज़ परचेज की, कॉन्ट्रैक्ट किया, हमें ये आइटम इस स्पेसिफिकेशन के, इस फीचर्स के चाहिए है, ये इन्वेंट्री हमें इस फीचर की चाहिए है, तो फिर क्या करेंगे आप? जब आपको इन्वेंट्री रिसीव हो जाती है तो फिर आप उस कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, उसके साथ ही आपको एक वाउचर आया हुआ होता है कैश पेमेंट वाउचर का कि ये आपकी चीज़ें आ चुकी हैं, इसको आप चेक कर लें। फिर आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं उस वाउचर का कि क्या ये उसके मुताबिक ही है कि नहीं है। देखते हैं कि ओके दिस आइटम दिस क्वांटिटी एंड दिस इज क्वालिटी, दिस आइटम दिस क्वांटिटी दिस क्वालिटी एंड दिस इज अ प्राइस। वो आप सारा उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद देन यू से ओके करने के बाद फिर आप कैश पेमेंट उसकी कर देते हैं। तो यही कंप्लीट एक प्रोसीजर होता है वाउचर्स का। देन बेसिक फीचर्स ऑफ वाउचर्स आर, अ वाउचर सिस्टम नॉर्मली यूजेस वाउचर्स। उसमें प्रॉपर आपकी एक वाउचर बनी होती है, एक कॉपी होती है, उसमें सारी की सारी डिटेल होती है। उसमें आपकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी, क्वांटिटी, उसके प्राइस, ये सारी की सारी चीजें उस पे मेंशन होती हैं और वो पूरा सीरियल नंबर लगे होते हैं उसके ऊपर, ताकि दरमियान में से कोई चीज निकल ना जाए, कोई पेज मिस ना हो जाए। हर एक के ऊपर सीरियल नंबर होता है और पत्नी कितनी, ये डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि उसमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक वो उसको मेंशन कर रहे होते हैं। देन सेकंड में द सिस्टम नॉर्मली हैज अ फाइल फॉर अनपेड वाउचर्स एंड अ फाइल फॉर पेड वाउचर्स। आप सेपरेट बना रहे होते हैं कि एक आपकी अनपेड वाउचर्स हैं और एक आपके पेड वाउचर्स हैं, इन दोनों को आपने सेपरेट रखा होता है। यानी अ सिस्टम नॉर्मली हैज अ फाइल फॉर अनपेड वाउचर्स एंड अ फाइल फॉर पेड वाउचर्स। Then usually prepared by the accounting department. After all necessary supporting documents are received, purchase orders, suppliers invoice and receiving report, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें डिटेल में होती हैं। That is purchase order, जो आपने उसको लिख के दिया था कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उसकी कॉपी साथ आएगी। उसकी रीज़न क्या है कि आपका सप्लायर साथ ये कंपैरिजन करके दे रहा है कि आपने जो चीज़ें हमें कही थी, हम वही चीज़ें आपको बना के दे रहे हैं, वही आइटम्स हम आपको सप्लाई कर रहे हैं। और फिर इनवाइस मींस के ये उसमें साथ एडिशन प्राइसेस की कर देता है। आप परचेज ऑर्डर में आपका प्राइस शामिल नहीं है, लेकिन इनवाइस में वो अपनी रसीद के मुताबिक आपको डिटेल लिख के दे रहा है
कि आपका ऑर्डर ये था, दैट इज अ परचेज ऑर्डर। अब इनवाइस उसकी ये बनी है कि ये क्वांटिटी आ गई, ये इसकी प्राइस होगी, ये इसका सीरियल नंबर है, ये इसकी क्वालिटी, एवरीथिंग इज बीइंग मेंशन्ड ओवर देयर। वो अपने मुताबिक कर रहा होता है। देन अ रिसीविंग रिपोर्ट, फिर साथ ये भी रिपोर्ट होती है कि यू हैव रिसीव्ड दिस। अब देखें आप, फॉर एग्जांपल टीसीएस वाले क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई भी चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी में, किसी भी घर में, तो साथ उसके सिग्नेचर्स लेते हैं। आपने लेटर दिया, लेटर रिसीव होने के बाद प्रॉपर उसके इनिशियल सिग्नेचर्स होते हैं, वो एक रिसीविंग रिपोर्ट होती है कि यस दिस आइटम हैज़ बिन डिलीवर्ड, वो उनके रिकॉर्ड में होती है। अब वो कौन करता है, वो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कर रहा होता है या स्टोर डिपार्टमेंट कर रहा होता है, कोई भी होता है, उसके साथ एक रिसीविंग रिपोर्ट होती है कि अब आपकी ऑर्डर के मुताबिक ये चीज़ें थी, ये प्राइस बनती है और आप लोगों ने ये रिसीव कर ली थी, अब हमें कैश की पेमेंट कर दें। अब इन प्रिपेयरिंग द वोचर्स द अकाउंट्स पेएबल क्लर्क वेरीफाइज द क्वांटिटी, एज आई टोल्ड यू, द प्राइस एंड द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स द पेड वोचर। अब ये आपने देख लिया कि दैट स्टार्टेड। अब क्लर्क क्या कर रहा है कि उसकी क्वांटिटी चेक कर रहा है, उसकी प्राइस चेक कर रहा है, और बाकी जो सपोर्टिंग उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्या वो पूरे हैं कि नहीं है, वो सारे के सारे चेक कर रहा होता है। फिर उसके बाद एक पेड वोचर्स बना। देन अ समरी रिसीव्ड फ्रॉम अ बैंक ऑल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब इससे पहले जो हमने काम किया है दैट इज ऑल अबाउट द वाउचर्स, कि आप सिंपली हर काम अपने पास रिकॉर्ड करें। आपने कोई चीज़ परचेज की, उसको अपने पास रिकॉर्ड किया। अब आपका जो दो सिस्टम हमने बनाए थे, कैश रिसीट्स का और कैश पेमेंट्स का। कैश रिसीट्स में आपके पास कैश आ रही है, आप बैंक में जमा करवा रहे हैं। आपके पास चेक्स आ रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, बैंक में जमा करवा रहे हैं उस चेक को। आपके पास पे ऑर्डर्स, डिमांड ड्राफ्ट आए हैं, आपने उसको बैंक के अंदर जमा करवा दिया। फिर दूसरी साइड ये है कि आपने कुछ परचेजेस की थी तो आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं। अब पेमेंट किसके थ्रू हो रही है, आप नॉर्मली कंपनी में कभी भी कैश पेमेंट नहीं होती, मोस्टली कैश पेमेंट नहीं होती वहां पर, मोस्टली बैंक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब आपने जो पेमेंट की दैट इज बीइंग डन थ्रू द बैंक अकाउंट, आपने उसको चेक लिख दिया, चेक दे रहे हैं आप, तो वो चेक बैंक में डिपॉजिट होगा और इसी तरह का जो आपका सप्लायर था उसको अपने अकाउंट में वो बैंक उसका ट्रांसफर कर देगा। आपने कैश रिसीव की, बैंक में जमा करवाया, आपके अकाउंट में वो अमाउंट जमा हो चुकी है। whereas you had given the check and that amount has been taken out from your bank account, वो भी मेंशन हो गई है। सो बैंक इज डूइंग टू साइडेड, वन इज रिसीविंग कैश एंड पुटिंग इट into your account and paying cash and withdrawing cash from your account। तो दोनों तरह के काम हो रहे हैं, एक कैश डिपॉजिट कर रहा है आपके अकाउंट में और एक कैश विदड्रॉ कर रहा है आपके अकाउंट में, ये दोनों काम हो रहे हैं। नाउ अ समरी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ ऑल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपकी रिसीट, आपकी पेमेंट्स, सारी की सारी डिटेल ट्रांजैक्शन आपकी कहां पे मेंशन होती है, आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर, कि यू हैव रिसीव्ड अ कैश, यू हैड पेड अ कैश, नाउ दिस इज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ योर अकाउंट। एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन आपकी ये। आपने देखा होगा जब आपको एक बैंक की स्टेटमेंट मिल रही होती है तो उसमें डेबिट लिखा होता है, क्रेडिट लिखा होता है, डेबिट क्रेडिट, तो फिर आपके पास ये पूरी पूरी वो डिटेल बता रहा होता है कि आपने कैश रिसीव की, आपने कैश पे की। सो दैट शोज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ योर अकाउंट। Then what is a bank reconciliation statement? What is a bank reconciliation? A bank reconciliation is a listing of items and amounts that cause the cash balance reported in the bank statement to differ from the balance of cash account in the ledgers. अब थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि वो बता ये रहा है कि आपका फॉर एग्जाम्पल कैशियर और आपका बैंक, These are two separate entities. अब आपको कैश रिसीव हुई, आप उसने इसमें लिख दी, आपको कैश रिसीव हुई, आपने यहां पे लिख दी, आपको चेक रिसीव हुआ, आपने लिख दिया।
इस सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आपने जाके बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में डिपॉजिट होगी। अब यहां पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं बैंक का अपनी स्टेटमेंट के साथ कि क्या बैंक में उतनी ही अमाउंट मौजूद है जो आपने डिपॉजिट करवाई है। आपने कैश डिपॉजिट करवाई, आपने चेक डिपॉजिट करवाया, आपने डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट करवाया। आपके पास फॉर एग्जांपल इसकी अमाउंट थी 100, इसकी अमाउंट थी 100, इसकी अमाउंट थी 100, टोटल आपकी ये 300 की अमाउंट आपने डिपॉजिट करवाई। लेकिन इन सब ट्रांजैक्शंस की हो सकता है आपके पास 200 शो हो रही हो। आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि द अमाउंट दैट आई हैव इन माय अकाउंट्स बीइंग एन अकाउंटेंट, इज इट इक्वल टू व्हाट आई हैव डिपॉजिट इनटू द बैंक अकाउंट। क्या बैंक में जो मुझे स्टेटमेंट शो कर रहा है क्या वो उसके मुताबिक है या कुछ डिफरेंट है। दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलिएशन। आप रिकॉन्साइल कर रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सो रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड एंड द बैंक स्टेटमेंट। अब मैंने बताया कि आपने डिपॉजिट करवाया 300, लेकिन क्या हुआ कि बैंक में शो हो रहा है 200, आपको स्टेटमेंट मिली है। व्हाट कुड बी द रीजंस? तो वो बेसिक रीजंस आप चेक कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स के ऊपर। देयर आर सम आउटस्टैंडिंग चेक्स। ये चेक ऐसे मेंशन करते हैं जो इनफैक्ट आपके जो इंग्लिश ऑथर्स होते हैं, हमारे पास चेक इस तरह लिखा जाता है, उनके पास चेक इसी तरह लिखे जाते हैं। ये बेसिकली चेक होता है कि कंपैरिजन आप चेक कर रहे हैं उसको। सो देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल वेयर एवर इफ यू सी CHEKS चेक्स मीन्स, तो ये आपका वही चेक होता है जो हमारे पास बैंक्स में चेक होते हैं। सो आउटस्टैंडिंग चेक्स, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल रिफ्यूज हो जाता है। नॉर्मली इसमें जो पॉइंट होते हैं वो यही होता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3-4 दिन लग जाते हैं, कि जिसकी वजह से आपका वो बैलेंस कंपैरिजन उसका नहीं हो रहा होता। देन डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट मीन्स के आपने डिपॉजिट करवा दिया लेकिन इट विल टेक अ टाइम, अभी उसका टाइम लगेगा उसको कलेक्शन में। ये आपने मेंशन कर दिया। ये वो चेक हैं जो आपने पे किए और अभी तक आपका जो सप्लायर है उसको कलेक्ट नहीं कर पाया, इस वजह से आपका अमाउंट ज़्यादा शो हो रही है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, आपको चेक्स मिले और आपके बैंक ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपने तो जमा करवा दिया उनको बैंक में, आपने अपने अकाउंट में तो मेंशन कर दिया उसको, लेकिन अभी तक बैंक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। देन सर्विस चार्जेस, बैंक जाहिर है चेक बुक की काटता है, ATM के सर्विस चार्जेस काटता है, या आपने कोई उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने इसके मुताबिक काम करना है तो वो उसके भी सर्विस चार्जेस लेता है। तो बैंक डायरेक्टली आपके अकाउंट में से काट लेता है लेकिन आपको नहीं पता होता उसका। तो ये भी रीज़न हो सकती है कि जिसकी वजह से आपका अकाउंट और बैंक अकाउंट डिफर कर रहे होते हैं। फिर कुछ कलेक्शंस हैं, कलेक्शंस की वजह से कि बैंक के ज़िम्मे लगाया आपने कि जी आपने ये इस डेट पे जाके कलेक्शंस करनी है, वो बैंक खुद ही कर लेता है अपने तौर पे और आपको नहीं बताता। तो इस वजह से भी दरमियान में बैंक अकाउंट और आपका अकाउंट में फ़र्क होता है। फिर इनसफिशेंट फंड्स, नॉट सफिशेंट फंड्स चेक्स, कुछ ऐसे चेक भी होते हैं जो कि इनसफिशेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 1000 का चेक मिला, आपने जाके बैंक में जमा करवा दिया और वो आपका डिपॉजिट इन ट्रांजिट बन गया हुआ है। लेकिन जब वो आपका बैंक दूसरे बैंक में जाके चेक प्रेजेंट करता है कि ये पेमेंट कर दें, आपका 1000 का चेक था लेकिन उसके अकाउंट में 900 पड़े हुए, तो वो चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो आपके रिकॉर्ड में तो चेक आया हुआ है, आपने मेंशन कर दिया हुआ है, लेकिन जब बैंक उससे कलेक्शन के लिए गया तो वो आपका नॉट सफिशिएंट फंड्स थे, जिसकी वजह से वो चेक रिफ्यूज हो जाता है और वो दरमियान में फिर 1000 का डिफरेंस आ जाएगा आपके रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में। बाद में आपको पता चलेगा तो फिर आप उसको सेट करेंगे। देन कुछ एरर्स हो सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं आपके पास, बैंक के पास। आपने फॉर एग्जांपल 723 लिखना था, आपने 732 लिख दिया। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ का फ़र्क आ गया, तो दरमियान में यानी आपने 723 लिखना था, आपने 732 लिख दिया। 9 रुपीज़ के दरमियान में फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें फ़र्क पड़ जाता है। आपने
इसके अलावा कुछ और भी मिस्टेक है, आपने पे का करना था, आपने रिकॉर्ड उसको रिसीव में कर लिया। तो इस तरह की भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। नॉर्मली आपके ये 6 ऐसे इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से आपके पास रिकॉर्ड और बैंक के रिकॉर्ड में फ़र्क आता है। कुछ डिलेड होने की वजह से आता है, कुछ मिस्टेक्स होने की वजह से आता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस दैट कॉज डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड एंड द बैंक रिकॉर्ड। मैं फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं जो कैश रिसीव होगी, जो पे होगी, तो मैं तो फौरन रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन बैंक अपना सारे का सारा सिस्टम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे करते हैं कि उन्होंने उस वक्त उसको रिकॉर्ड करना है जब कैश आ गई है, उस वक्त उसको रिकॉर्ड करना है जब कैश पे कर दी है, इससे पहले वो रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे इन चीज़ों की वजह से फ़र्क आता है कि आप कहते हैं कि मेरे अकाउंट में, मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक 10,000 मेरे अकाउंट में अमाउंट मौजूद है, और बैंक कहता है कि जी आपके जो है वो जस्ट 8,000 है, तो ये 2,000 का डिफरेंस क्यों आया? तो ये बेसिक आपकी 6 रीजंस हैं जिनकी वजह से डिफरेंस आता है। सो स्टेप्स इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन, क्या स्टेप्स हैं आपके? कंपेयर ईच डिपॉजिट लिस्टेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट with unrecorded deposits appearing on the preceding periods reconciliation and with the deposit receipts। आप उसका कंपैरिजन करें डिपॉजिट रिसीट्स का जो बैंक में है और जो आपके पास है। सिंपल वर्ड्स में ये आपको मैं बता देता हूँ, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं उस टाइम पीरियड के साथ। फिर होगा क्या? ऑल डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक टू द बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट। आप क्या कर रहे हैं कि बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, आप उसको रिकॉर्ड कर लें। यानी एड डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक टू बैलेंस अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट, आप उनको ऐड कर दें इसमें। सिंपल ये होगा, जो बैंक ने नहीं किए आप उनको ऐड कर दें। देन नेक्स्ट क्या होगा? कंपेयर पेड चेक्स विद आउटस्टैंडिंग चेक्स। आपने जो चेक पे कर दिए हैं, जो आउटस्टैंडिंग थे, जिनकी आपने पेमेंट करनी थी, यानी आउटस्टैंडिंग मीन्स के आप इसको कहें कि पेमेंट, सिंपल जरा इजी हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग मीन्स के यू हैव गिवन द चेक्स फॉर सम इन्वेंटरीज दैट यू हैव परचेज्ड, अब उनकी आपने पेमेंट करनी थी। अपीयरिंग ऑन द प्रीसीडिंग पीरियड्स ऑफ रिकॉन्सिलिएशन एंड विद रिकॉर्डेड चेक्स, आप उनको चेक करें जरा। यानी क्या किया आपने? फिर क्या करेंगे? ऐड क्रेडिट मेमोरेंडम्स दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड टू बैलेंस अकॉर्डिंग टू डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड। ये इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। इनकी हम डिटेल जो है ना वो ट्रांजैक्शंस करके देखेंगे कि हुआ क्या है, कैसे किया जा रहा है इसको। सिंपल आप इनको देखें कि ओवरऑल ये आउटस्टैंडिंग चेक की बात हो रही है, फिर आप उसको माइनस कर रहे हैं या ऐड कर रहे होते हैं। तीसरा आपके पास कंपेयर बैंक क्रेडिट मेमोरेंडम टू एंट्रीज इन द जर्नल्स, आप जर्नल में चेक करें जो आपकी एंट्रीज हैं। देन फिर चौथा है कंपेयर बैंक डेबिट मेमोरेंडम टू एंट्रीज रिकॉर्डेड कैश पेमेंट्स, आप उनकी कैश पेमेंट्स का मेमोरेंडम चेक करें। फिर क्या होगा? इन केस देयर इज सम मिसिंग एंट्रीज, डिडक्ट डेबिट मेमोरेंडम दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द बैलेंस अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड। फिर डिपॉजिटेड रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसका बैलेंस चेक कर लें। ये नॉर्मली आपकी ट्रांजैक्शंस हैं। लास्ट में आपके पास लिस्ट एनी एरर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग स्टेप्स, वो जो 6 की 6 थी उन सारी की सारी यही डिटेल आ रही है। अब थोड़ा सा इसको देखें आप कि यहाँ पर आपके पास जो वो मैंने थोड़ा सा क्विकली इसलिए गुजार दिया है कि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको जब एक स्टेटमेंट मिली है तो आपने देखा कि बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक क्या अमाउंट है और आपके रिकॉर्ड के मुताबिक क्या अमाउंट है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ। जब बैंक ने आपको स्टेटमेंट दी तो उसमें आपके पास 3,359.78 ये आपका बैलेंस बनता है बैंक के मुताबिक। आपके रिकॉर्ड के मुताबिक तो बैंक में पैसे होने चाहिए 2,549। बैंक आपको ज्यादा आपका बैलेंस शो कर रहा है, आपके रिकॉर्ड में तो अमाउंट कम होनी चाहिए, लेकिन बैंक के पास क्यों है? यानी पावर नेटवर्क इनकॉर्पोरेशन प्रिपेयर्स टू रिकॉन्साइल द मंथली बैंक स्टेटमेंट एज ऑफ जुलाई 31, 2011। जुलाई 31 आ चुका है, अब मंथली बेसिस पे आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फर्क क्या है? कहां पे फर्क आ रहा है? आप जो डेबिट करते हैं
बैंक के लिए वो क्रेडिट होता है। आपने ज़ाहिर है डिपॉजिट करवाया, कैश आपकी है, तो आपका वो एसेट है डेबिट, और बैंक के लिए वो क्या है क्रेडिट। बैंक के लिए क्रेडिट किस तरह है वो, कि ज़ाहिर है बैंक के लिए तो वो लोन है, आप पैसे तो आपके हैं, वो बैंक के लिए तो लोन बनेगा, बैंक के लिए तो वो क्रेडिट होगा। सो बेसिकली ये छोटी सी बात है, लेकिन दरमियान में आपने देखना ये है कि बैंक के पास बिगिनिंग इन्वेंट्री थी 3359 की और आपके पास थी 2549 की। दरमियान में डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो जो 6 हमने देखे थे एरर्स, उनकी वजह से आ रहा है। सो एक ट्रांजैक्शन आपने देखी, आपने कहा कि अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज 816.20 डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपने डिपॉजिट करवाया लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। आपने डिपॉजिट करवाया 816 रुपीज का, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में तो वो है ही नहीं। जब आपको स्टेटमेंट मिलती है तो उसमें पूरी डिटेल होती है ना स्टेटमेंट की, कि आप डिपॉजिट करवा रहे हैं 816 की, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में तो वो है ही नहीं। फिर क्या करेंगे आप? एड डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। आपने क्या किया, ये अमाउंट आपकी शुरू की बैलेंस थी, आपने बैंक में जमा करवाया, तो वो बैंक ने अभी तक स्टेटमेंट में शो नहीं किया, आप उसको जमा कर दें। यानी क्या ट्रांजैक्शन किया हमने कि जो आपके पास रिकॉर्ड में था, बैंक में नहीं था, तो बैंक में आप ऐड कर दें। एक ट्रांजैक्शन आपने कंप्लीट कर दी है कि आपके पास 816 का चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक ने तो उसको रिसीव ही नहीं किया अभी तक, तो फिर क्या करेंगे? आपने वो ऐड कर दिया। अब इस वक्त आपका बैलेंस कितना शो हो रहा है? 4175, लेकिन आपके डिपॉजिट में कितना है? 2549। फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, हालांकि ये अमाउंट कम होनी चाहिए थी और बढ़ गई है बैंक की। फिर क्या करेंगे आप? अनदर ट्रांजैक्शन यू विल सी। अ बैंक कलेक्टेड अ नोट इन अमाउंट ऑफ ₹400 and related interest of 8 rupees for power networking। बैंक ने अपनी ही बिहाफ पे एक नोट कलेक्ट किया 400 का, और उसके ऊपर 8 रुपए का इंटरेस्ट भी था, वो भी बैंक ने कलेक्ट कर लिया। आपको तो पता ही नहीं है उसका। बैंक ने एक डेट आई, जाहिर है प्रॉमिसरी नोट था एक, जो एक डेट थी, आपने बैंक को कहा कि कलेक्ट कीजिएगा, आपको तो पता ही नहीं है कब कलेक्ट होना है। बैंक ने वो कलेक्ट कर लिया 400 का, प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट भी था 8 रुपीज़ का। 408 रुपीज़ की एक कलेक्शन थी जो आपको पता ही नहीं है, बैंक ने अपने बिहाफ पे कर ली। तो फिर क्या करेंगे? बैंक के रिकॉर्ड में तो है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है वो कि कलेक्शन हो गई है, तो आपने फिर उसको ऐड कर दिया। बैंक के रिकॉर्ड में थी, बैंक ने कलेक्ट किया था, बैंक ने आपको नहीं बताया। जब आपने स्टेटमेंट देखी कि ये 408 रुपीज़ इसमें क्यों ऐड है, तो देन यू मेमोराइज्ड कि ओहो ये तो वो कलेक्शन थी जो बैंक ने करनी थी, बैंक ने तो कर ली, आपके अकाउंट में वो कलेक्टेड नहीं है, तो आपने उसमें ऐड कर दिया 408 रुपीज़ से। तो आपने 2549 में 408 रुपीज़ ऐड किया, तो अब ये बैलेंसेस आ रहे हैं, लेकिन स्टिल दोनों में फ़र्क है अभी तक बहुत ज़्यादा। तो कुछ और ट्रांजैक्शंस भी होंगी। कहता है कि 3 चेक्स दैट वर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपने कहीं पे पेमेंट की, जाहिर आपने कोई चीज़ें परचेज की थी, उसके अगेंस्ट आप पे कर रहे थे, आपने पेमेंट की, आपने तो रिकॉर्ड कर लिया कि जी ये हमने चेक लिख दिए, कैशियर ने लिख दिया कि जी ये पेमेंट्स हम ये चेक हैं और ये हम पे कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्रीज के अगेंस्ट जो हमने परचेज की थी, लेकिन वो चेक्स अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। आपका जो सप्लायर था उसने वो चेक अपने पास अभी रखे हुए हैं, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुए कलेक्शन के लिए। तो इसका मतलब वो बैंक के रिकॉर्ड में नहीं है, आपके रिकॉर्ड में तो हैं, बैंक के पास नहीं है, तो जाहिर है बैंक के रिकॉर्ड में नहीं होंगे। सो उनकी अमाउंट्स क्या क्या थी? 1061, 435 एंड 40 रुपीज़। ये 3 चेक थे कि जो आपने दे दिए हुए थे और वो बैंक में अभी तक अपीयर नहीं हुए। तो क्या करेंगे उसके लिए? आप इन तीनों चेक्स को बैंक स्टेटमेंट में ऐड करेंगे। ये तीनों चेक्स, उनकी अमाउंट्स आपने ऐड की तो टोटल अमाउंट बनती है
1544। तो क्या कर रहे हैं आप, डिडक्ट कर रहे हैं ना, जाहिर आपकी चेक पेमेंट्स थी, बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट ही नहीं हुए कलेक्शन के लिए, तो फिर आप उसको माइनस कर रहे हैं कि आपके जो डिपॉजिटर्स के रिकॉर्ड में तो है, जाहिर है जब आप चेक लिख के दे रहे हैं किसी को आप तो माइनस कर रहे हैं, लेकिन बैंक उस वक्त माइनस करेगा जब वो बैंक में पेश होंगे, बैंक में प्रेजेंट होंगे, सप्लायर उसको लेके आएगा कि जी ये चेक्स हैं इनकी पेमेंट करें, तो वो अभी तक आए ही नहीं। तो फिर आप कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चला कि ये 3 चेक थे जिनकी अमाउंट 1544 थी, उसको आप माइनस करेंगे। देन द बैंक रिटर्न्ड एंड नॉट sufficient funds check from one of the firm's customer Thomas in the amount of 300. This was a payment on account. अब एक और 300 का था जो कि वापस हो गया नॉट सफिशिएंट फंड्स होने की वजह से मिस्टर थॉमस का, उसकी अमाउंट कितनी थी 300 की। तो फिर क्या होगा, आपने उसको ऐड तो कर लिया था, जाहिर है चेक आया आपने ऐड कर लिया, बैंक में जमा करवा दिया, बैंक ने कहा कि जी ठीक है मैं इसको उसके अकाउंट में जाके चेक करता हूं कि वो अमाउंट ताकि मैं कलेक्ट कर सकूं, लेकिन जब उसके अकाउंट में बैंक ने प्रेजेंट किया तो वो बैंक में उसके 200 थे या 250 थे, कंप्लीट 300 अमाउंट नहीं थी, तो वो फिर जो है उसका चेक रिटर्न हो गया कि उसके अकाउंट में इतनी अमाउंट ही मौजूद नहीं थी कलेक्शन की जाती, लेकिन आपने तो उसको ऐड किया हुआ था अपने अकाउंट में, तो फिर आप उसको फिर इस 300 को माइनस कर देंगे आप अपने अकाउंट में से, क्योंकि इसमें तो वो है ही नहीं और इसमें आपने रिकॉर्ड किया हुआ था तो उसको निकाल दें। देन अब बैंक सर्विस चार्जेस टोटल ₹18, बैंक ने यहां से काट लिए पैसे, बैंक के रिकॉर्ड में तो हैं, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, तो फिर आप उसको माइनस कर दें। बैंक ने तो खुद ही अपने तौर पे सर्विस चार्जेस काट लिए थे, लेकिन जब स्टेटमेंट आई तो आपको पता चला कि ये ₹18 सर्विस चार्जेस कटे हुए हैं, इसको तो माइनस करें ना, तो वो फिर आप माइनस कर रहे हैं, आपने यहां पे फिर उनको माइनस किया। ये अमाउंट यानी एक 300 आपने डिडक्ट करनी है और एक आपने ₹18 डिडक्ट करने हैं। देन चेक नंबर 879 फॉर 732 टू टेलर कंपनी ऑन अकाउंट एरोनियसली रिकॉर्डेड इन जर्नल एज ₹, वही जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि अमाउंट थी 732 की, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कितना कर लिया 723, यानी आपने दरमियान में जो ₹9 थे वो गलत रिकॉर्ड किए। चेक कितनी अमाउंट का था 732 का ऑन अकाउंट था, रिकॉर्डेड आपने जो रिकॉर्ड किया उसको 723 रिकॉर्ड कर लिया, बजाय इसके कि 732 रिकॉर्ड करते। ₹9 है वो आपने फिर यानी आपने कम रिकॉर्ड किए तो आपको वो रिकॉर्ड करने। अब फिर क्या करें, एरोनियसली रिकॉर्डेड दिस अमाउंट, तो आप उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके पास 300, 18, ये 9, इन सब को आपने ऐड किया तो टोटल अमाउंट बनती है 332 की। ये वो अमाउंट हैं जो बैंक में अपीयर नहीं हो रहे, और ये वाली जो चेक्स हैं जो आपके पास अपीयर हो रहे हैं लेकिन बैंक में अपीयर नहीं हो रहे। तो जो जहां पे अपीयर नहीं हो रहा आप उसको वहां पे लिख रहे हैं, तो जहां पे अपीयर नहीं हो रहा आप उसको वहां पे लिख रहे हैं। जो चेक्स बैंक्स में अपीयर नहीं हो रहे बैंक में लिख रहे हैं, जो चीजें आपके रिकॉर्ड में अपीयर नहीं हो रही आप उसको वहां पे लिख रहे हैं। सो आपने ये डिडक्ट किया। नाउ अब इनका बैलेंस चेक करें आप कि यू हैव नाउ एग्जैक्ट बैलेंस फॉर बोथ साइड्स, कि जो जहां पे रिकॉर्डेड नहीं था आपने वहां पे रिकॉर्ड किया, जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड था वो आपने वहां से माइनस किया, तो फिर आपके पास ये रिकॉर्ड आ चुके हैं। आप देखें दोनों की अमाउंट सेम है। ये वो चीजें थी, बिगिनिंग बैलेंस आपके स्टार्ट हुए, फिर उसमें से आपके पास एक ये फिगर थी जो रिकॉर्ड में नहीं थी, इधर से 408 की अमाउंट थी जो रिकॉर्ड में नहीं थी। फिर उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग चेक्स थे जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए थे, लेकिन आपने अपने रिकॉर्ड में तो लिख लिए थे ना, तो फिर बैंक में नहीं थे तो बैंक में लिख दें। ये वो अमाउंट थी जो बैंक की रिकॉर्ड में तो थी लेकिन आपके रिकॉर्ड में नहीं थी, तो आपने फिर उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। जाहिर है अब सफिशिएंट बैलेंस की वजह से एक
अमाउंट आपकी बन ही नहीं सकती, आपने अपने पास लिखा हुआ था उसको माइनस करें। बैंक के सर्विस चार्जेस बैंक ने तो कर लिए थे, आपके रिकॉर्ड में नहीं थे, आपने वो मेंशन कर दिए। फिर एक चेक था जिसमें 9 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, तो आपने वो भी माइनस कर दिए। जब इन सबको माइनस किया, ऐड किया, जो जहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं था आपने उसको वहीं पे रिकॉर्ड किया, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट और आपके डिपॉजिटर स्टेटमेंट वो इक्वल होगी। सो दैट इज ऑल अबाउट योर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ इफ डिजायर्ड वी कैन प्रिपेयर अ फॉर्मल स्टेटमेंट फॉर पावर नेटवर्किंग। आप उसकी फॉर्मल स्टेटमेंट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? यू जस्ट सी दीज एरियाज। इसको मैं अगर हाफ कर दूं, ये मैंने हाफ कर दिया इसको, कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट्स नॉट रिकॉर्डेड, तो अमाउंट आपकी ये बन जाती है। फिर ये आउटस्टैंडिंग चेक्स थे, ये आपने माइनस किए, ये माइनस करने के बाद आपके पास अब बैलेंस कितना बच रहा है? 2630.99। ये अब बैंक के रिकॉर्ड में आएगी अमाउंट। फिर बैलेंस पर डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड, बिगिनिंग बैलेंस ये था, इसमें 480 ऐड नहीं था जो बैंक ने कलेक्ट किया था, बैंक के रिकॉर्ड में था, तो अब आप अपने रिकॉर्ड में भी ले आए उसको। फिर दरमियान में 3 ऐसी चीज़ें थी जो आपने ऐड की हुई थी, एक्स्ट्रा ऐड की हुई थी, बैंक में वो जा नहीं सकती थी क्योंकि कुछ बैंक में रिकॉर्डेड थी और कुछ जो है वो जैसे नॉट सफिशिएंट फंड्स थे आपके, वो उस वजह से आपने ऐड कर ली थी, उसको माइनस करें। और ये 9 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, ये भी इसको माइनस करें, तो आपके पास ये 327 ये अमाउंट आपने माइनस की, तो अब आप देखें कि दोनों की अमाउंट्स इक्वल आ रही हैं। आपके पास बैंक का रिकॉर्ड भी ठीक हो गया और आपका रिकॉर्ड भी ठीक हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट योर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वो जो 6 चीज़ें हैं वही आपकी बेसिक डिफरेंस का रीज़न बनती हैं कि चेक डिपॉजिट करवा दिया, चेक आउटस्टैंडिंग है, चेक डिपॉजिट इन ट्रांजिट चल रहा है, अभी तक कलेक्शन नहीं हुई, उसकी गलती से आपने लिख दिया हुआ है, बैंक के चार्जेस हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी दोनों स्टेटमेंट्स को, डिपॉजिटर्स की स्टेटमेंट को और बैंक की स्टेटमेंट को डिफरेंट शो कर रही होती है कि इनके बैलेंसेस डिफरेंट हैं। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ आवर लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। वी डिस्कस्ड अबाउट द कंट्रोल ओवर कैश, हाउ यू हैव टू कंट्रोल द कैश, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने आपने और डिटेक्टिव मेजर्स लेने। रिटेलर सोर्स ऑफ कैश के आपने जो कैशियर्स और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनको सेपरेट रखना होता है कि एक ही बंदा ना कैश रिसीव कर रहा हो ना कैश पे कर रहा हो। फिर कंट्रोलिंग कैश रिसीव्ड इन द मेल, तो आपने प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू करना होता है और उसको मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि आप कैसे उसको इन प्रोसेस रखते हैं। देन इंटरनल कंट्रोल ऑफ कैश पेमेंट्स, आपने कैश पेमेंट करनी है तो फिर उसके लिए इंटरनल कंट्रोल आपका क्या होना चाहिए? प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उसका, हमने देखा था उसे बड़ी डिटेल में। देन बेसिक फीचर्स ऑफ वाउचर सिस्टम क्या होती हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, आपने क्या क्या काम करने होते हैं वाउचर्स के, ताकि जो इन्वेंट्री मिली आपको उसी के अगेंस्ट आप पेमेंट करें। ये ना हो कि आप इन्वेंट्री कोई और हो, प्राइस कुछ और हो, बेसिक फीचर्स उसके कुछ और हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट कुछ और किया और फिर आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने उसका कंपैरिजन करना है। देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने देखी है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है एंड रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड्स एंड बैंक स्टेटमेंट, क्या फ़र्क हो सकता है, ये रीजंस देखी हैं। फाइनली एंड वी केम अप स्टेप्स इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमने वो सारे के सारे इन डिटेल देखे। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर लेक्चर नंबर 30 and we have completed our chapter number 7. It was a very small chapter what we have done. Inshallah in my next lecture, that is second last lecture, lecture number 31, मैं आपको उसमें कुछ questions दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपके उसके लिए आपके प्रैक्टिस के लिए, so that you would be in a position to understand कि आपने ये स्टार्ट कहाँ से किया था, अपना सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट किया, अकाउंटिंग साइकिल पे आए, फिर आप इन्वेंट्रीज पे और फाइनली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपने बना दिए। और फाइनल लेक्चर में मैं आपको सारा ओवरव्यू दूंगा कि हमने क्या कुछ अभी तक पढ़ा हुआ है। सो अप टू दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 7. सो थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह विल मीट ऑन लेक्चर नंबर 31. सो अप टू दैट, अल्लाह हाफिज़.